Good morning, children. Now we are meeting for chapter 18. No place for us. कोई जगह ही नहीं बची अपने लिए. तो this is about Jetria Bhai and his family. Jetria Bhai was sitting at the door with his daughter Jimli. They were waiting for Sidhya. It was almost night, but Sidhya had not come home. 2 years back, Jetria's family came to Mumbai from Sinduri village. Here they only knew the family of a distant relative. With their help, Jetria Bhai began to repair torn fishing nets. But the money he got was not enough. They had to pay for medicines, food, school fees, rent, for the house. Here they even had to buy water. ये जेत्रिया भाई की कहानी है. वो 2 साल पहले सिंदूरी विलेज से मुंबई गया था. मुंबई में उनको कोई नहीं पहचानता था. एक दूर का कोई रिश्तेदार था. उसके मदद से उसने फिशिंग नेट्स, जो मछली पकड़ने की जालियाँ होती है ना, वो रिपेयर करने का शुरू कर दिया. बट उतने पैसे उनके लिए काफ़ी नहीं थे, क्योंकि वहाँ सिटी में बहुत खर्च था. उनको मेडिसिन, खाना, फीस, स्कूल की फ़ीस, फिर घर का भाड़ा सब देना पड़ता था. पानी भी पैसे से लेना पड़ता था. यंग सादिया ऑल्सो हैड टू वर्क इन द नियर बाय फिश फैक्ट्री टू अर्न सम मनी. From 4 o'clock till 7 o'clock in the morning, he cleaned and sorted a big and small fish. Then he would come home, take a nap and go to school in the afternoon. In the evening, he would wander around the vegetable market. He would help some memsab, means ladies, to carry their bags, or go to the railway station to pick up empty bottles and newspapers to sell to the kabadiwala, junk seller. Somehow they were managing their life in the city. Now Sidhya was not very big, but then also he had to work in the fish factory from evening 4 o'clock, दोपहर के 4 बजे से दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक. इतना काम करने के बाद उसको वहाँ क्या काम करना था? उसको फ़िश क्लीन करनी थी और छोटी और बड़ी मछलियाँ अलग करनी थी. इतना काम करने के बाद जब वो घर आता था तो थोड़ी देर सो जाता था. सोने के बाद वो दोपहर को स्कूल जाता था और शाम को फिर से वो वेजिटेबल मार्केट जाता था. वहाँ जाके वो बड़े बड़े मेम साहब होते हैं, उसको थैला उठाने में हेल्प करता था. फिर रेलवे स्टेशन पे जाके खाली बॉटल और न्यूज़पेपर्स और सब लेके कबाड़ी वाले को बेच देता था. ऐसे वो लोग जैसे तैसे अपनी लाइफ सिटी में बसर करते थे, मुंबई में बसर करते थे. इट वॉज नाइट बट सिद्धिया हैड नॉट कम होम. Jimli was watching a dance on TV through the neighbor's window, but Jetria did not like watching TV here. Everything was so different that they would pass running around for work. They would pass the whole day running around for work, but the evening brought back old memories. पूरा दिन काम करते थे, पर जैसे ही शाम होती थी पुराने दिन याद आ जाते थे, है ना. तो ये थिंक एंड टेल में जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैंने नोट्स 1 में दिए हैं. वो आपको इधर ही पेंसिल से नोट डाउन करना या 2-3 बार पढ़ लेना. वो आपकी इमेजिनेशन, आपकी जो क्या सोचते हो वो सब है. वेरी इजी क्वेश्चन आंसर्स दे आर. यू डोंट नीड टू राइट देम. ओके. नाउ रिमेंबरिंग द ओल्ड डेज, पेज 166. Jetria was born in Khedi village, in the middle of the thick green jungles and hills. His people had been living there for many years, even before his grandfather was born. जेत्रा जो खेड़ी विलेज में रहता था वो बहुत ही घने जंगल और पहाड़ों के बीच में था, और उसके वहाँ जो लोग रहते थे वो उसके दादा के जन्म के पहले से रहते थे. मीन्स 3-4 पीढ़ियों से वहाँ रहते थे. There was peace in Jetra's village, but not silence. There were so many soothing sounds. The gurgle of the flowing river, the murmur of the trees, and the chirping of birds. People did farming. They would go to the nearby forest, chatting and singing together to collect wild fruits, roots, and dried wood. While working with the elders, children also learnt many things: to dance together, to play flute and dhol, to make pots of clay and bamboo, to recognize birds and imitate their sounds, etc. Now, people collected things from the forest for their use. Some of those they would sell in the town across the river. With that money, they would
बाय सॉल्ट, ऑयल, राइस एंड सम क्लोथ्स। नाउ ये जो विलेज था उसमें शांति थी, पर साइलेंस यानी कोई शोर नहीं था, ऐसा नहीं था। वहाँ अच्छे अच्छे सूदिंग साउंड्स यानी बहुत अच्छे, कान को अच्छे लगे ऐसे पानी के बहने की आवाज़, तो फिर पत्तों के हिलने की आवाज़, पक्षियों के बोलने की आवाज़ सब सुनाई देता था। इधर के लोगों को मेन ऑक्यूपेशन क्या था बेटा? फार्मिंग। दे वुड गो टू द नियर बाय फॉरेस्ट ऑल्सो, चैटिंग एंड सिंगिंग टुगेदर, साथ में नाचते गाते जाते थे। फिर जंगली पत्ते, फूल, ड्राइड वुड, रूट्स, फ्रूट्स सब लेके आते थे। वाइल वर्किंग विद द एल्डर्स, उनके एल्डर्स दादा दादी के साथ चाहते थे, और बच्चे भी सीख गए थे क्या? डांस करना, ढोल बजाना, फ्लूट बजाना, ये सब सीख गए थे। दे ऑल्सो लर्न टू मेक पॉट्स ऑफ क्ले एंड बाम्बू, टू रिकग्नाइज बर्ड्स, बर्ड्स को पहचानते थे वो कि ये कौवा है, ये कोयल है, ऐसे। एंड इमिटेट देयर साउंड्स, उनके आवाज़ की भी नकल कर सकते थे। वहाँ जाके ये लोग बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करते थे, तो जो उनको ज़रूरत थी वो लोग रखते थे, बाकी सब क्या करते थे? वो नदी के उस पार, रिवर के उस पार जो सिटी था उसमें सब बेच के जो पैसे मिलते थे उसमें से नमक, तेल, चावल सब लेके आते थे। इट वॉज अ विलेज बट पीपल हियर लिव टुगेदर लाइक अ बिग फैमिली। जेत्रा's sister was married in the same village. People helped each other in good and bad times. The elders would arrange weddings and settle quarrels. Jethra was now a strong young man. He worked hard in the fields and caught fish from the big river. He and his friends would go to the forest to collect fruits, roots, and the plants for medicines, and fish from the river to sell them in the town. During the festival times, Jethra will dance and play the drum with boys and girls of his age. देखो ये विलेज में क्या होता था, बहुत सारे लोग रहते थे, बट सब मिलजुल के रहते थे, एक बड़े से फैमिली, एक बड़े से कुटुंब की तरह। जेत्रा सिस्टर को भी यही गांव में शादी हुई थी, इन द सेम विलेज। सो इधर के सब एक दूसरे को मदद करते थे, तो बड़े बुजुर्ग लोग शादियाँ करवाते थे और झगड़े सेटल करते थे, क्वारल सेटल करते थे। नाउ जेत्रा वॉज बॉर्न, जेत्रा बड़ा हो गया, स्ट्रॉन्ग यंग मैन, बड़ा बन गया, जवान बन गया है। वो बहुत ही मेहनत करता था, खेतों में और रिवर में से मछलियाँ पकड़ के लाता था। वो और उसके दोस्त फॉरेस्ट में जाते थे, फ्रूट्स और रूट्स और प्लांट्स सब कलेक्ट करते थे दवाइयों के लिए, एंड फिश और सब कलेक्ट करके शहर में जाके बेच के आते थे। और फेस्टिवल के टाइम पे जेत्रा बहुत अच्छा डांस करता था। ही यूज्ड टू प्ले ड्रम ऑल्सो। और उनके उम्र के सब लड़के लड़कियां सब डांस करते थे, बहुत मज़े करते थे। नाउ टेल, क्वेश्चन आंसर्स ऑफ टेल, आई हैव गिवन यू इन नोट्स टू, यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन इन योर fair books. Okay, thank you, have a nice time.